ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल जी। सो वीज़ा विनर कंसलटेंट 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਕੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ नहीं कहूँगी कल्ला मैं, है ना, पूरा नॉर्थ भी नहीं जाएगा इस टाइम के उपर। पूरे इंडिया दे विच स्टूडेंट जिहड़ा है वो कैनेडा जाने लैके हैगा एक दौड़ च लग्या होया कि किसी तरीके नाल वीज़ा जिहड़ा लग जाए। नो डाउट बहुत अच्छे तरीके नाल सक्सैस रेट जिहड़ा पिछले इंटेक्स दे विच असीं देखिया, रिजैक्शन भी वड्डे पद्धर दे उपर आईयां, पर जिहड़े स्टूडेंट वाकई च जैनुअन सीगे उन्हां बच्चों नूं मोस्टली 80% केसिस च आपां देख सकते हैं भी आपां वीज़ा देखिया। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਪਲੜਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ PT ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਲਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SDS 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇंजेस आए ने उन्होंने किस तरीके नाल तुसी देखते हो। देखिए, कनाडा ने जो थोड़े से अपने रूल्स चेंज किए हैं उसमें मेन रूल उन्होंने यही बोला है कि 10 अगस्त से वो PT को भी एक्सेप्ट करेंगे। पहले PT SDS कैटेगरी में नहीं आती थी, अब PT को उन्होंने SDS कैटेगरी में लेना शुरू कर दिया। बट क्या उसमें 5.5 बैंड चलेंगे और PT में कितना स्कोर चाहिए, 60 नो लेस देन 55 चाहिए, 56 चाहिए, वो जब नियर टू द डेट, जब हमारे पास वो डेट आएगी और हम देखेंगे तभी पता चल पाएगा। बट PT अब उन्होंने जो है एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है SDS कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि PT पे पहले वीज़ाज़ नहीं आते थे, PT पे पहले भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा था, वीज़ाज़ काफ़ी आते थे, चाहे वो नॉन SDS कैटेगरी में ही जाते थे। टॉफल पे रिजल्ट बहुत अच्छा, अगर टॉफल में आपका अच्छा स्कोर है तो उस पर भी रिजल्ट आपका अच्छा आ जाता है। हाँ, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका आइल्स नहीं हो रहा या उसको प्रॉब्लम आ रही है, एक में 5.5 रह रहे हैं, तो हमारी उनको सजेशन यही रहती है कि आप उसी को इम्प्रूव करो, PT कर लो, नहीं हो रहा तो टॉफल कर लो, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। स्कोर आपका PT में 60 हो तो ही फाइल लगाओ, टॉफल में भी आपका अच्छा स्कोर हो तो ही फाइल लगाओ। हाँ, कनाडा ने ये नहीं बोला कि वो 5.5 एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये न्यूज़ में है, काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि 5.5 अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गया है। एक्सेप्ट तो पहले भी हो रहा था, अप्लाई तो आप 5.5 पे पहले भी कर सकते थे। हाँ। लेकिन क्या उस पर वीज़ा लगेगा, ये अभी भी एक क्वेश्चन है जो अभी तक क्लैरिफाई नहीं है, और ये अभी इनटेक निकलने के बाद में पता चलेगा ना, सितंबर के रेशो के बाद डालेंगे सितंबर इनटेक की 5.5 पे, उसके बाद उनके रिजल्ट्स महीने 1.5 महीने में या 10 दिन में आएंगे, फिर पता चलेगा कि रिजेक्शन रेट कितना हाई है। तो अगर किसी भी बच्चे ने किया ही है और कनाडा जाने का प्लान बनाया ही है, तो चाहे 2 बार किया, 3 बार किया, अगर आइल्स नहीं हो रहा PT कर लो, नहीं हो रहा टॉफल कर लो, बट 5.5 पे फाइल थोड़ी रिस्की है, क्योंकि एम्बेसी में ऑलरेडी इतना रश है, इतना स्टूडेंट जा रहा है, तो उनके पास बहुत ऑप्शन है। वो 6.5 वाले बेसिक मसला तो ये है ना, उन्होंने क्रीम प्रोफाइल उठानी है, अच्छी प्रोफाइल। देखो, प्रोफाइल हम बहुत चीज़ों पे कंसिडर करते हैं। प्रोफाइल होती है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, कितनी परसेंटेज है, आपका गैप कितना है, आपके रिफ्यूजल्स हैं या नहीं है। उसमें एक कैटेगरी आइल्स है, बट आइल्स काफ़ी मेन कैटेगरी है, तो आइल्स को आप इतना कैजुअली नहीं ले सकते कि ठीक है एक में 5.5 है। जिन बच्चों के प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जो 3-3, 4-4 बार आइल्स कर चुके हैं और उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब वो बेचारे परेशान हैं, उनका नहीं हो पा रहा, तो वो थोड़ा सा अपनी कोचिंग पे ध्यान दे, अपने थोड़ा स्किल पे ध्यान दे।
अब पीटी के ऑप्शन है उनके लिए, वो डाल सकते हैं फाइल अपनी, उसमें अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। अभी ये भी है ना कि पहले ये था कि फिर भी कहीं ना कहीं डाइस ही था कि पीटी हाँ, पे रिजल्ट अच्छा आएगा कि आएगा नहीं। कि नहीं। अब रिजल्ट तो देखना रहेगा, लेकिन हाँ उन्होंने एसडीएस जो है उसमें काउंट कर दिया है, तो एसडीएस से आगे इट मींस कि कितने कितने सक्सेस रेट सानू अच्छा उम्मीद ही ने भी ऐसी अच्छा देख हाँ, सकते हैं ना। उम्मीद है, बिल्कुल हाँ उम्मीद है। एंड अच्छा क्योंकि एसडीएस के बिना भी अगर आप नॉन एसडीएस फाइल डालते हो तो सक्सेस रेट उसमें भी बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता, अच्छा रिजल्ट उसमें भी है, लेकिन बच्चों को सिर्फ एक मन की तसल्ली हो जाएगी कि हमने पीटी पे फाइल डाली है और एसडीएस में डाल और दिया ना। एसडीएस अच्छा में डाली। बजट कैसे देखते हो आप कि किसी ने अप्लाई करना है, क्योंकि हर किसी का एडवर्टाइजमेंट करने का एक अलग तरीका है। कोई कहता है 5 लाख में कनाडा चले जाओ, कोई कहता है 12 लाख में चले जाओ, कोई कहता है जी 20-22 लाख लग जाएगा। बेसिक जो खर्चा है वो क्या है, कहाँ से शुरू होता है वो खर्चा, कौन कौन से स्टेप पर हमें जो है अपनी पॉकेट से रुपए निकाल के खर्च करने पड़ते हैं? राइट, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। आपका 20 लाख रुपए का खर्चा है ही है अगर आपने अपनी कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा के लिए फाइल लगानी है, क्योंकि पहला तो हम पैकेज नहीं करते। जर्नली बच्चे कहाँ से जाके थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम पैकेज कर लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। पैकेज में क्या होता है कि जर्नली आप फिर प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, उसको भी हम आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ खर्चे की बात है, आपको 20 लाख चाहिए, क्योंकि आपकी आज की डेट में 1 साल की फीस जो है वो कम से कम 10 से 12-13 लाख के बीच आ रही है, क्योंकि डॉलर रेट भी बढ़ चुका है। ये 1 साल की फीस है जो आपको यहाँ जाने से पहले दे के जानी ही जानी है, तभी आप एसडीएस कैटेगरी में भी कंसिडर होगे। उसके बाद आपका जीआईसी जाएगा $10,250, वो कम से कम 6.25-6.5 लाख बन रहा है, क्योंकि डॉलर रेट हाई है। फिर आपका मेडिकल के एक्सपेंस है 6-7 हज़ार उसमें लगेंगे, एम्बेसी फ़ी, बायोमेट्रिक, और साथ में आप टिकट का भी खर्चा लेके चलो। टिकट के लिए भी, और टिकट भी महंगी है कि टिकट भी 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25-2 लाख की भी चली जाती है। तो आपका 20 लाख रुपए का खर्चा आता ही है। अगर आपने कनाडा जाने का प्लान बनाया है तो आपके पास 20 लाख रुपए तक पैसे होने चाहिए। वो पैसे आपके पास कहाँ से आए, किसने दिए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रीसेंट पैसे होंगे तो भी चलेंगे। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको 6 महीने पुराने या 5 महीने पुराने या 3 महीने पुराने पैसे दिखाने हैं, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतने पुराने पैसे नहीं चाहिए। रीसेंट आपके पास पैसे आए हैं, आपने कोई अपनी ज़मीन बेची है या आपको रिटायरमेंट के आपके पेरेंट्स को पैसे आए हैं, आप वो यूज़ करके जा सकते हो। तो टोटल खर्चा 20 लाख का है ही है, जिसमें आपकी 1 साल की फ़ीस, 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा, और आपकी टिकट का खर्चा, और जो आपके जाने से पहले बेसिक खर्चे होते हैं, मेडिकल, एम्बेसी फ़ी, बायोमेट्रिक, ये सब मैं इंक्लूड करके बोल रही हूँ। ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਆਈਸੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀਆਈਸੀ ਕੀ ਹੈ, जीआईसी ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? देखिए जीआईसी क्या होता है, जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के अंडर आता है, जिसका मतलब है, हम अगर साधारण भाषा में बोलें तो आप इसको एक तरह से अपनी एफडी मान सकते हो, कि आप बच्चे को कनाडा पढ़ने भेज रहे हो, उसकी एक एफडी करा के भेज रहे हो, जहाँ जाके उसको प्रॉब्लम ना आए। तो कनाडा में उसको वो जीआईसी जो है $10,000 का जो उसने कराया हुआ है, उसको जाके हर महीने वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे वो अपना महीने का खर्चा निकाल सकता है। जाते ही उसको पहले तो $2,000 मिल जाते हैं, जिससे उसके पास स्टार्टअप करने के लिए थोड़े पैसे हो जाते हैं। उसके बाद उसको हर महीने का, अगर आपके बच्चे को जाते ही जॉब नहीं मिली, या आपके बच्चे के पास थोड़ा टाइम लग गया, कॉलेज में बहुत बिजी है पढ़ने में, या असाइनमेंट्स है, तो वो काम तो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा? माँ बाप तो फिर पैसे नहीं भेजेंगे। तो यहाँ से वो पहले ही अपने पैसे लेके जाता है एक तरह से जीआईसी की शेप में, जो उसको हर महीने जिस बैंक में वो अपना जीआईसी करवाता है, वहाँ से उसको हर महीने वो पैसे मिलते रहते हैं, जिससे वो अपने डेली एक्सपेंसेस, रेंट एंड खाना पीना और के पैसे वगैरह अपने दे सकता है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली ये जीआईसी के जो आप ठगी की बात कर रहे हो, वो ये हो सकता है कि जर्नली बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जब भी किसी के साथ फाइल लगाते हैं तो वो उनको बोल देते हैं कि आप हम आपका पैकेज कर रहे हैं जीआईसी। ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, किस आधार ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ताकि ਤੁਸੀਂ अवेयर हो जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ ऐसा ना होवे। जी शिवानी जी। हाँ जी, मैं सिर्फ यही बोलूँगी, अगर आपने ठगी से बचना ही है ना, तो आप जब जीआईसी अपना बनवाते हो, जिस भी बैंक में आपका खाता, चाहे वो आरबीसी में है, सीआईबीसी में है, या फिर आपका जो है स्कोशिया बैंक में है, या आईसीआईसीआई में भी है, जिसमें भी है, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए।
अगर आपका कंसल्टेंट जेन्युइन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको आराम से दे देगा। बस वो आप अपने पास लॉगिन आईडी पासवर्ड रखो, ताकि कल को अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप वो पैसा आराम से अपने खाते में वापस मंगा सकते हो। क्योंकि ठगी यही होती है कि GIC तो बच्चे करा लेते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके पास नहीं होती, और कल को अगर कोई भी कंसल्टेंट है वो ऑफिस बंद करके चला गया या भाग गया या कुछ भी हो गया, तो वो GIC बच्चे का मंगवा ले, या फिर वो बच्चे को ना कैसे भी हाँ वो यूज बच्चे को कर ना दे, सकता है ना। तो वो वैसे यूज करने के वैसे चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है आज की डेट में, हर चीज़ पे ट्रैक रखा जाता है। लेकिन फिर भी आप बेटर यही है कि जब आपका GIC का खाता खुल रहा है, आप उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने खुद पास के अपने पास हाथ में रखे। राइट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने 2019, 2020, 2021 में अपनी +2 कंप्लीट करी। इसके साथ साथ ही मतलब मेरा डायरेक्टली सवाल गैप को लेकर है, क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा मार्केट में अभी घूम रहा है जो अभी कंसल्टेंट की पौड़ियाँ ही चढ़ता है। आज चंडीगढ़ चले गए, कल मोहाली चले गए, परसों खरड़ चले गए, उसके बाद लुधियाना चले गए, फिर जलंधर, फिर अमृतसर। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में बच्चा घूमता है, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट देखता है, कभी फिरोजपुर भी और फरीदकोट भी बच्चे चले जाते हैं कि भाई कोई कंसल्टेंट हमें कह दे कि +2 के बाद तेरा मैं 4 साल का गैप एक्सेप्ट कर लूंगा, आज मैं फाइल लगा देता हूँ। अब ये गैप एक्सेप्ट की एडवर्टाइजमेंट तो 8 से 10 साल तक की है। इसको मैं एक्सप्लेन आपसे जरूर करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से कौन सा गैप एक्सेप्ट होगा, कैसे गैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने वहां पे जरूरी है, कि सिर्फ मैंने लिख दिया जी मैंने इतने साल ये कंपनी में काम किया था, क्या आपकी वहां पे डबल क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है या नहीं, ये सब चीजें। बिल्कुल मनदीप, मैं आपको वही बोलूंगी, क्रॉस चेकिंग तो बिल्कुल ही होती है। देखिए गैप का अगर आप बात करें, अगर आप मुझसे बात करें, तो मैं तो गैप के बिल्कुल फेवर में ही रहती हूँ कि ठीक है गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि 2 साल का है, 4 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, हमारा अभी लेटेस्ट 22 साल के गैप वाले का भी वीज़ा लगा है। तो मैं गैप को इतना हार्मफुल नहीं समझती कि गैप हो गया आप कनाडा जा ही नहीं सकते। हाँ, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि बच्चे गैप भरने के लिए जब फेक डिग्रियाँ बना लेते हैं कि चलो हमने 12वीं के बाद हमारा 3 साल का गैप है, हमने BA की डिग्री बना ली, या हमने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में एम्बेसी ने काफ़ी कॉलेजेस जो हैं वो बैन किए हुए हैं, तो बच्चे जब अपनी डिग्रियां बनाते हैं तो कभी कभी वो फंस भी जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी तो सब कुछ क्रॉस चेक करेगी, उनके पास सारे तरीके हैं आपकी फ़ाइल को चेक करने के, आपके हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के। तो गैप का मतलब ये नहीं है कि आप फाइल नहीं लगा सकते, लेकिन जो आप फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस पर आपके फंसने के चांस बहुत हो जाते हैं। तो आप कोई भी फेक डिग्री डॉक्यूमेंट मत लगाइए, आप अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए कि जो आपका गैप था वो किन रीज़न से हुआ, क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी, क्या उसमें कोविड हो गया था, क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी, आप उस तरीके से करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। डिग्री बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब वो डिग्री वेरीफाई होगी और वो आ जाएगा कि आपकी फेक है, और अगर नहीं भी आया तो भी, जैसे कल को आप चले गए कनाडा जाने के बाद भी तो आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपको वर्क परमिट मिल गया, आपने जब PR डालनी है तब भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और जितने वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वो कहीं ना कहीं आपके फंसने के चांस हैं ही हैं जब तक आप PR नहीं होते। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। गैप कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 15 साल का है, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है कि किसका गैप चलेगा और किसका गैप नहीं चलेगा। तो आप आम तौर पर कितना गैप एक्सेप्ट हो जाता है? 12वीं के बाद तो मैं चाहती हूँ 4 से 5 साल तक का गैप भी आराम से चल जाता है, और ग्रेजुएशन के बाद तो 10-12 साल का भी गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग 12th के बाद अपने जैसे नेटिव प्लेस में ही कहीं ना कहीं जॉब करना शुरू कर देते हैं उसी एरिया में, तो कुछ कंसल्टेंट का ये मानना है कि 12वीं के बाद तो जॉब ही नहीं मिलती, तो आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। क्या जॉब एक्सपीरियंस वो लगेगा या नहीं, मैं इस चीज़ का जवाब चाहती हूँ। वो जॉब एक्सपीरियंस वहाँ से हम मानेंगे अगर वो जॉब वेरीफाई होती है। अगर आप अपने घर के आसपास भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, अगर सैलरी अकाउंट में तो वो बिल्कुल लगेगा। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने सैलरी आपको अकाउंट में नहीं दी या आपने बिल्कुल छोटी जॉब ही की है, तो भी उसकी वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है किस तरीके से की गई है, उस पर डिपेंड करता है। सैलरी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह उनसे कुछ हो जाएगा एडजस्ट, सैलरी सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन अगेन वही बात है, वो वेरीफाई होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में नहीं लगा सकते अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ। राइट, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो थोड़ी डॉक्यूमेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਇਲਸ 7 ਬੈਂਡ ਸੀ, 7.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨॉन एसटीएस ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ किस तरीके ने किहड़े कारण ने जिन्हां करके रिजेक्शंस देखने को मिलियां ज़्यादा? देखिए रिजेक्शन के कारण तो बहुत हो सकते हैं। रिजेक्शन का मेन कारण मैं 5.5 को भी मानती हूँ। अगर आपके एक में 5.5 है तो पिछले 2 साल में उस पर भी बहुत रिजेक्शन है। एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही थी, 90% रिजेक्शन उस पर है। उसके बाद जो बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 बैंड है, 7.5 बैंड है, 6.5 बैंड है, फिर भी रिजेक्शन हुई है, तो उसके भी कारण है। अगर अब वही बच्चा 12वीं का है तो हो सकता है उसके 12वीं में नंबर बहुत ख़राब हो, या आपके नंबर अच्छे नहीं हैं। हमने कितने बच्चे देखे हैं जिनके 12वीं में ओवरऑल 70% होती है लेकिन उनके मैथ में 33 नंबर होते हैं या 40 नंबर होते हैं। वो भी एक कारण है कि आपके नंबर कम है। जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है उसका भी यही कारण हो सकता है कि उसकी परसेंटेज बहुत कम है। उसके बाद अगर हम एक और कारण देखें कि आपने जो भी पढ़ाई की है आपने उससे रेलेवेंट कोर्स नहीं लिया। रेलेवेंसी पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन बीटेक आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है तो ऑफ कोर्स आपको उससे रेलेवेंट कोर्स ही लेना है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि अगर कोर्स रेलेवेंसी नहीं है तो आपको वीज़ा मिलने के चांस कम है। क्योंकि एम्बेसी भी अपनी जगह ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि आपने 4 साल लगाए हैं पढ़ाई में, इस पढ़ाई में आपने 4 साल लगाने के बाद अब आप फील्ड तो नहीं बदल सकते, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी रिजेक्शन सिर्फ इन कारणों से होती है। अगर आपको ये डाउट है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और हमें सही कारण नहीं पता चल रहा, क्योंकि जर्नली रिजेक्शन लेटर पे यही लिख के आता है कि आप वापस नहीं आओगे और आपका जो है मिसिंग मार्कशीट्स हैं या फिर आपका मिसिंग आइल्स है, ऐसा लिख के आ जाता है। तो ये कारण पे आप नहीं जा सकते। अगर आपको बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने केप्स नोट्स अप्लाई कर सकते हो, उन पे भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्या कारण था, क्यों रिजेक्ट हुआ, और उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। शिवानी मैम, बहुत सारी हमने ना सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखी है कि आपकी रिजेक्शन आ गई, आप हमारे पास आओ, हम वीज़ा दिलवा देंगे, हम माहिर हैं रिजेक्शन केसेस में। और प्रोफाइल अगर आप देखो तो सेम प्रोफाइल, सेम कॉलेज में, सेम जगह पर, मतलब ये भी नहीं कि कैंपस चेंज किया, सेम बैंड स्कोर पर प्रोफाइल दोबारा लॉन्च की जाती है तो वीज़ा भी निकल जाता है। अब उसमें क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या गेम प्ले की जाती है? वहाँ पे देखिए मैं इसका तो ये बहुत ही आंसर जो है इसका मैं क्या बताऊँ आपको, बिकॉज जब आप एक बार फाइल अप्लाई करते हो समटाइम्स वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं होता और दूसरी बार आप अप्लाई करते हो क्योंकि हर टाइम वीज़ा ऑफिसर भी बदल रहा होता है, तो कभी कभी ये भी कारण हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो गया। दूसरी बार आपकी शायद सेकंड टाइम में आपने एसओपी जो है अपनी बहुत वेल एक्सप्लेन की हो। जैसे हमारे पास अभी एक बच्चा है, उसके 8 रिफ्यूज़ल थे, तो 8 रिफ्यूज़ल के बाद जब हमने फ़ाइल डाली है, कॉलेज उसका सेम था, हमने वही कॉलेज उठाया था, कोर्स भी उसका सेम था, बस हमने उसकी एसओपी और फाइल में पूरे चेंजेस किए हैं। फाइल को प्रेजेंट कैसे करना है, एसओपी में क्या चेंजेस है, क्या चीज़ एम्बेसी को दिखानी है, क्या चीज़ हम चाहते हैं कि वो देखे, तो वो सब करके डाले और उसका 10 दिन में वीज़ा आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, वीज़ा जैसे ही सेम प्रोफाइल पे बच्चा लगाता है दोबारा फाइल, कंसल्टेंट चेंज करता है तो वीज़ा निकल जाता है, तो कंसल्टेंट का रोल भी है इस चीज़ में? कंसल्टेंट का रोल है ऑफ कोर्स कि आपका वो बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसके पास गए हो हर किसी को अपनी रेप्यूटेशन का, देखिए आज की डेट में किसी भी कंसल्टेंट को फ़ायदा नहीं है आपका रिजेक्शन होने में। कंसल्टेंट का भी बेनिफिट तभी है जब आपका वीज़ा आएगा, क्योंकि रेफरेंस भी उनके पास तभी आएगा जब आपका वीज़ा आएगा, और अगर उनकी कोई फ़ीस है वो तो भी तभी लेंगे जब आपका वीज़ा आएगा। तो ये भी एक बहुत अपनी फाइल को वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उस कंसल्टेंट पे भी है, बच्चे पे भी है कि बच्चा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, जैसे हमारे पास बच्चा के बोलते हैं कि हमारा रिजेक्शन हुआ है मैम, हमने सीए रिपोर्ट बनाई है, हमने ये सब कुछ डाल दिया, हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रॉपर्टी की लगा दी है, हम उनको नहीं मानते। मतलब हम पर्सनली बोलते हैं कि अगर आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्टेड है तो स्टडी वीज़ा में आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप सीए रिपोर्ट लगाओ। हाँ, इट इज़ ए
इसकी एडेड वैल्यू ज़रूर है, अगर आप लगा रहे हो तो बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीए वैल्यूएशन लगा दी तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप सेम कंसल्टेंट से भी अप्लाई करते हो तो वहाँ से भी वीज़ा आ जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि एसओपी चेंज करके आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर मैटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना वो देखते हो ना। वैसे मैं एक चीज़ ना अक्सर कई ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵੀਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? एसओपी में देखिए आप पूरा एसओपी में हम जर्नली ये बोलते हैं बच्चे को कि एसओपी बहुत ज़्यादा बड़ी मत बनाओ। हमारी पर्सनल प्रेफरेंस ये रहती है कि एसओपी बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, जिस पे टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वीज़ा ऑफिसर उसे पढ़ पाए। अगर आपने 4 पेज की बना ली और उसमें आपने पूरी स्टोरी लिखी है तो वीज़ा ऑफिसर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो 4 पेज पढ़ पाए। तो आप एक उसको क्रिस्प एसओपी बनाओ जिसमें आप टू द पॉइंट बात करो, अपनी एजुकेशन को और आपके मोटिव को, आप क्यों जाना चाहते हो, कॉलेज का क्यों आपने ये वाला डिसाइड किया, उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। अगर उनको ये चीज़ समझ आएगी तो वो आपको वीज़ा ज़रूर देंगे। राइट। हाँ, बिल्कुल। कितनी रिजेक्शन के बाद में वीजा आने के चांसेस होते हैं? आपने अभी तक आपका हाईएस्ट जो रिजेक्शन के बाद में वीजा आपका निकला वो कितने के बाद मेरा निकला अभी हुआ जो लास्ट निकला वो 8 रिजेक्शन वाला निकला एंड अभी Okay. 1 वीक पहले की बात है? है। तो वो बच्चे की प्रोफाइल क्या थी? 12th पास बच्चा था, 75% मार्क्स थे, 6.5 नो लेस देन 6, कुछ खराबी नहीं है प्रोफाइल में, 21 पास आउट, कोई भी खराबी नहीं है। और 8 रिजेक्शन ले ली बच्चे ने बैक टू बैक। हर इनटेक में वो रिजेक्ट हो रहा था, किसी किसी इनटेक में 2 बार भी रिजेक्ट हुआ है। फिर उसको लगा मेरा वीजा लगा तो वो यूएस भी उसने अप्लाई कर दिया, यूएस से भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसको किसी ने बोला कि चलो अब तुम कनाडा फिर से एक बार लगा लो, उसने कनाडा का लगाया, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर उसके फ्रेंड ने हमारे को उसको रेकमेंड किया कि तुम यहाँ आओ, क्योंकि उसके फ्रेंड का हमसे ही वीज़ा लगा था, उसके भी 4-5 रिफ्यूज़ल थे। तो वो आया, हमने वही फाइल उसकी ली, उसी को एक्सप्लेन किया, वही लॉन्च की। क्योंकि बार बार क्या है कि जब आपके रिफ्यूजल्स हो जाते हैं ना तो बच्चे को सभी लोग क्या सजेशन देते हैं, तू कॉलेज बदल ले, तू कोर्स बदल ले। बट जब आप कॉलेज और कोर्स बदलते हो तो वीज़ा ऑफिसर को भी दिख रहा है कि आप कॉलेज और कोर्स बार बार बदल रहे हो, आप वहाँ पे भी फंसते हो। तो कॉलेज बार बार चेंज करने से बच्चे का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जितनी बार अपनी फीस वापस मंगाएगा 1-1.5 लाख रुपया कट जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी कोर्स में पर्टिकुलर सक्सेस रेट ज़्यादा है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन का सक्सेस रेट ज़्यादा है? नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कॉलेज में हर कोर्स में वीज़ा आता है, बस वो जो कोर्स है उसकी रेलेवेंसी आपके प्रोफाइल से एग्जैक्ट होनी चाहिए, मिलना चाहिए। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, तो वो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। मतलब वीज़ा ऑफिसर को समझ आना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। अगर आपकी बात उनको समझ नहीं है, क्योंकि आप उनके सामने तो बैठे नहीं हो, आपकी फाइल ही एक्सप्लेन कर सकती है, अगर आप वेल एक्सप्लेन करोगे तो वीज़ा ज़रूर आ जाएगा। कोई भी वीज़ा ऑफिसर है, एज पर योर एक्सपीरियंस, उसकी इंटेंशन क्या है, वो कैसे जज करता है आपकी प्रोफाइल को? देखिए, वो आपकी प्रोफाइल में ऑफ कोर्स ये देखेगा कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से कोर्स में जा रहे हो, ठीक है, आपको पीछे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपने फीस पे की है। अगर वही बात होगी, अगर किसी बच्चे के 1 में 5.5 है, इंडिया में इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाया, कनाडा जाके एक इंग्लिश कंट्री में जाके वो कैसे सर्वाइव करेगा जहाँ पे टीचर्स ने भी इंग्लिश में पढ़ा, तो ऑफ कोर्स आपका लो पॉइंट हो गए, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वीजा ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर देगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने मेरा वीजा क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है, तो आपको वो चीज़ तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। दीज आर द पॉइंट्स। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ, ਬਿਲੋ 60 ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, 51-52% ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 58-59% ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 59-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। सेम इन्हां दी रहिंदी है प्रेजेंटेशन की ओदे च भी कुछ चेंजेस आउंदे ने? नहीं, बिल्कुल वो डिफरेंट है। फिर जब आपका प्रोफाइल लो है, जब आपके एकेडमिक्स लो हैं, तो यू हैव टू मेक योर फाइल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैं वही बोल रही हूँ, बच्चों को तो ये भी लगता है हमारे तो 70% नंबर है, 70% नंबर तो है, लेकिन इंग्लिश और पंजाबी को मिला के है, फिजिकल एजुकेशन को मिला के है। आप कोर सब्जेक्ट्स के नंबर देखिए आपके क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितने नंबर है, अगर कॉमर्स के हो तो उसमें कितने नंबर है, और अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो कितने नंबर है। कोर सब्जेक्ट्स के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आपकी फाइल होनी चाहिए और वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम है तो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ जाना चाहिए। राइट शिवानी, मार्केट में ना एक ऐसा बच्चा भी है
जिसको कई बार नहीं पता चलता, हम बहुत लेट प्लान करते हैं कि हम अब्रॉड स्टडी के लिए जाएंगे। यहाँ पे जी बैचलर कर ली, बैचलर के बाद मास्टर्स कर ली, बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन किया फिर बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन किया फिर बीपीएड कर लिया, कुछ और नहीं तो पीजीडीसीए कर लिया ऐसे, या फिर एमए कर लिया, कुछ ना कुछ अलग से एडिशनली अपनी प्रोफाइल को यहाँ इन्हेंस करने के लिए डिग्री बढ़ा ली। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि या तो आप डिग्री हाइड कर लो या फिर आप जा ही नहीं सकते, आपको कोई और कंट्री चूज करनी चाहिए, कनाडा को छोड़ दो आप। उस केसेस में आप क्या करते हो? देखिए अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स की है, किसी बच्चे ने डबल मास्टर्स की है, हम तो कोई डिग्री हाइड नहीं करते। हम बोलते हैं आपकी पढ़ाई है, आप उसको बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि अगर आपने मास्टर्स किया आपको कनाडा जाके उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जब आप पीआर अप्लाई करोगे। तो पीआर आपका कनाडा जाने का मोटिव क्या? ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर में पीआर चाहिए, और पीआर के लिए आप इतनी मेहनत भी करोगे। तो जो आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, जिसमें आपने 2 साल लगाए हैं मास्टर्स में या डबल मास्टर्स में, आप वही हाइड कर दोगे तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और उसको अगर हाइड कर दोगे तो फिर उसको छुपाने के लिए कुछ और करोगे, कोई फेक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लगाओगे। तो जो आपकी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंगली दिखाओ। ऐसा नहीं है, सब कंसल्टेंट तो मना नहीं करते, जिनको नॉलेज कम है बस वही मना करते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि जो भी पढ़ाई है आप उसको दिखाइए, और ऐसे कंसल्टेंट से फाइल लगाइए जो आपकी एजुकेशन को हाइड ना करे, क्योंकि उसका नुकसान आपको बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा। एज पर आधारित होता है वीजा सक्सेस रेट कि 30+ हो गया तो आप नहीं जाओगे? 43 वाले का वीजा आया, स्टडी वीजा। क्या प्रोफाइल थी उसकी? उसकी प्रोफाइल थी, आप देखो उसने 2002 में पढ़ाई खत्म कर दी थी, तो 21 साल का गैप हो गया, 20-21 साल का गैप था। 2 बच्चे थे, मैरिड था, 2 बच्चे थे, 13 साल का और 11 साल का। तो आप सोचो इस एज में आके उसने पढ़ाई के लिए जाने का सोचा, बिकॉज ही वॉज अप्लाइंग फॉर पीआर, ही वॉज ट्राइंग सिंस लॉन्ग, लेकिन उसका वीज़ा नहीं आ रहा था। फिर उनको किसी ने सजेशन दी, वो हमारे पास आए, हमने भी यही बोला कि आपके 50-50 चांसेस हैं वीज़ा लगने के, तो आप अप्लाई करो। बट प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बताई थी हमने, मतलब बहुत अच्छे से प्रोफाइल बना के प्रेजेंट किया था। फर्स्ट टाइम में ही उनका वीज़ा निकल गया, एंड ही वाज 42 ਇਅਰਸ ओल्ड। तो आप देख सकते हो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। Hello everyone, my name is Gurpreet Singh. Today I got my study visa for Canada. So today I would like to thank to the visa winner consultant, which helps me a lot in this journey. And I would like to recommend to all the aspirants, please visit and consult visa winner consultant. Thank you. Myself Sahib Malhotra. I am 2021 pass out from Jammu University. I recently got my stamped Canadian visa from Visa Winner Consultancy. Their services are hassle-free, so it is highly recommended for you to try them once. Thank you. Hello everyone, my name is Gurpreet Singh and today I got my stamped passport from Visa Winner Consultants, and today I am very happy, so I recommend you all to visit Visa Winner Consultants for any kind of visa related query. Thank you. Hello, myself Gunpreet and I am from Poonch, Jammu and Kashmir. Today I am here to receive my stamped passport. I got my study permit with the help of Visa Winner Consultants. So I recommend Visa Winner Consultants to each and every student who want to study abroad to achieve their goals and dreams as well. Thank you. Hi, today I am here to receive my visa of Canada with the help of Visa Winner Consultants. So I suggest you, they provide very good services and my overall experience is very great. So must visit, and if you have any query, must visit here. My name is Mubashir Sen. I am from district Ramallah, Jammu and Kashmir. Passed out in 2020. Recently, I got my stamped passport with the help of Visa Winner Consultant, and their team is very helpful. If you have a dream of going abroad, please visit them and get your dream fulfilled. Thank you. My name is Vishnu Singh, and today I have got my visa from Visa Winner. They are very supportive. If you have any query, please visit Visa Winner for your further process if you want to fulfill your dreams to go in any country. Thank you. Hello friends, my name is Vikas Sharma. I applied for studies in Canada through Visa Winner Consultants. They provide me the best faculty here, and I have got my passport stamped today. I have been earlier 2 times refused from another agents, and I am very happy, and so that I would like to recommend all of you to come. Hello everyone, my name is Ravinath Singh. I am a 25 years old resident from Jammu. I recently got my Canada study-based visa. I had a huge gap of educational gap of 7 years, which never allowed me to think of studying abroad. But when I met the counselors of Visa Winner Consultants, they provided hope, and they considered this as a case because I was refused from many consultancies.
and finally I got my visa and they paid off well. So I'm very thankful to the entire team of Visa Winner Consulting. Hello everyone, my name is Tanvi Rajput and I am 12th pass out. I applied for my study visa from Visa Winner Consultancy and I got my visa. I'm very happy. And I want to convey a message to all of you who are seeking for the visa. Should consult Visa Winner Consultancy. They are just amazing. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੰਮੂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।